Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Thank you, Lord. आइए हम वचन की ओर जाएंगे, उसके पहले हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, we thank your name, O Master God. Lord, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, Lord. We lift up your holy name, O Father. There is no one else like you, Master. As we are going to learn about, O Lord Jesus, the sermon, Lord, about your teaching, Father, Lord, touch your people, O Lord. Those who are over here, O Master God, and those who are coming, those who are on the way, Father, open doors for them, O Lord. Let them come, O Master. And those who are here, O Father, help them to understand what we are going to teach, O Lord. Lord, even I pray, those who are watching online, Master, you bless them too, Father. I thank your name. I lift up your holy name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Let's open our Bible to Proverbs 14:34. और आइए हम पवित्र शास्त्र को नीति वचन उसके 14वें अध्याय और उसके 34 वचन में हम खोलेंगे। पवित्र शास्त्र में नीति वचन की किताब 14 अध्याय 34. और वचन 34 को हम पढ़ेंगे। Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. जाति की बढ़ती धर्म से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। Church, today we are celebrate Republic Day. कलीसिया, आज हम हमारे भारत देश के जो है गणतंत्र दिवस को हम मना रहे हैं। Day that remind us that India choose to live under Constitution. ये वो दिन है जब भारत गणराज्य जो है, भारत देश ने गणराज्य यानी लोकतांत्रिक देश होने का जो है निर्णय लिया। Under Constitution, under law, order and responsibility, it is a day of freedom, unity and identity. और हम देखते हैं कि जो संविधान हमारे देश ने अपनाया, उसके तहत हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये देश कानून से चलता है और इसीलिए हम देखते हैं कि ये आज का ये जो दिन है वो आज़ादी, खुशी और जो है हमारी जिम्मेदारी का एहसास करवाने वाला दिन है। But as a believer, we also remind this truth. और विश्वासी होने के नाते हमें ये सत्य जो है वो याद दिलाया गया है। A nation is not made strong only by its law, army and economy. और इस बात को याद रखिए, कोई भी देश उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से जो है मजबूत नहीं बनता। A nation is made strong by righteousness. और एक देश जो है मजबूत बनता है जब देश में धार्मिकता वास करती है। India is a land of diversity, many languages, culture and traditional, yet a nation, one nation. हम देखते हैं कि हमारा देश विविधता का देश है। बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे वेशभूषा, खाने की आदतें अलग अलग है और हम देखते हैं कि इतनी विविधता होने के बाद भी हम एक देश है। The Bible tells us that unity is not just political, it is spiritual. और बाइबल हमें बताती है कि एकता राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकता आत्मिक तौर से भी होनी चाहिए। When righteousness rules heart, जब लोगों के दिलों में धार्मिकता निवास करेगी, justice flows, तब न्याय इस देश में बहेगा, peace increases, देश में शांति बढ़ेगी, families grow strong, परिवार मजबूत बनेंगे the nation prospers. और जो राष्ट्र है वो संपन्न होगा। Freedom without righteousness become chaos. और हम देखते हैं कि जो आज़ादी है, अगर वो धार्मिकता के बगैर आती है या धार्मिकता नहीं होती है आज़ादी में, तो वो आज़ादी नहीं, बर्बादी है। Righteousness without responsibility is selfishness. और हम देखते हैं कि धार्मिकता बिना किसी जिम्मेदारी की, इसे हम स्वार्थीपन कहते हैं। Righteousness without it is selfishness. But when people walk in God's way, the nation is lifted. लेकिन जब देश के लोग परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, तब देश ऊंचा उठाया जाता है। Example, the strong foundation. उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो मजबूत नींव होती है, When a building is tall,
foundation is deep. जब एक इमारत ऊंची होती है, जितनी ऊंची वो इमारत होती है उतनी गहरी उसकी नींव होती है। But foundation is weak, the building will collapse. लेकिन अगर नींव कमजोर है तो पूरी इमारत जो है वो ढह जाएगी। Right? सही बात है। If it looks very beautiful from outside, it looks very nice, but it will collapse. अगर बाहर से वो बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से ढांचा अगर कमजोर है तो वो पूरी इमारत जो है वो ढह जाएगी। In the same way, India's truth strength is not only in progress, development, but it is strong, moral and spiritual. इसीलिए भारत देश तभी मजबूत बनेगा जब ना केवल हमारी अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन साथ ही साथ नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से भी लोग जब सही जो है रास्ते पर चलेंगे तब देश मजबूत होगा। Spiritual foundation. और देश की जो आत्मिक जो नींव है वो मजबूत होगी। If families are strong, and the nation will be strong. अगर परिवार मजबूत है तो देश मजबूत होगा। If heart is honest, the system will be healthy. अगर दिलों में ईमानदारी होगी तब हमारे देश की जो प्रणाली है उसमें ईमानदारी दिखाई देगी। If people fear God, the future will be secure people. अगर लोगों के अंदर परमेश्वर का भय होगा तब देश की जनता का जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। Our role as a believer, एक विश्वासी होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है, भूमिका है, as a Christian, we call to pray our nation. और हमें बुलाया गया है कि हम हर दिन हमारे देश के लिए प्रार्थना करें Respect the authorities. और जो देश के अधिकारी है उनका सम्मान करें Live as a respectable citizen. और इस देश के सम्मानीय नागरिक की तरह जीवन इस देश में बिताएं Shine as a light in society. और समाज में एक उजियाला, एक ज्योति के समान आपको चमकना इस देश में। We may belong to different states, but we serve one God and we live in one nation. हम भले ही अलग अलग राज्यों से आते हैं, हमारे मुल्क, हमारा गांव अलग अलग है, लेकिन हम एक ही देश की हमें सेवा करनी है। Let us not only celebrate freedom today, और आइए ना केवल जो देश को आज़ादी मिली है उसका आनंद उत्सव से बाज के दिन ही हम मनाएं, but also commit ourselves to with dignity, love and faith. और हमें जो है सम्मान, विश्वास और प्रेम के साथ इस देश को में जीवन जीकर दिखाना है। Because God's people walk in righteousness, क्योंकि the nation is blessed. क्योंकि जब परमेश्वर के लोग धार्मिकता में चलते हैं तब राष्ट्र आशीष पाता है। Amen, church. कलीसिया आमीन। See, God has chosen us. From so many people are there in India. आप देखो भारत की आबादी इतनी बड़ी आबादी है, 100-150 करोड़ लोग हैं इस देश में, और उन 150 करोड़ लोगों में परमेश्वर ने आपको चुना है। It's chosen only us. Why we? Because you know about the salt, right? और Salt. क्यों सिर्फ हमें चुना गया है? आपको मालूम है बाइबल में नमक का उदाहरण दिया गया है। The salt, if we'll put whole packet in the food, it will be a bitter, right? और आप देखो अगर पूरा नमक का पैकेट उठाकर आप खाने के हांडी में डाल दोगे तो खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा। Right? सही बात है। Salt is only put this much only, and that give us a perfect taste. और देखो इसीलिए किसी भी व्यंजन में या पदार्थ में नमक बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बस चुटकी भर नमक जो है वो पूरे खाने में स्वाद लाता है। So you are the salt of the world. और इसीलिए यीशु ने कहा हमें जगत के नमक हैं, So हम God थोड़े has हैं। chosen you to pray for the nation, और आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप भारत देश के लिए प्रार्थना करें, to pray for your authorities, कि जो हमारे अधिकारी हैं हम To- उनके लिए प्रार्थना to करें pray for everyone. और हम हर एक के लिए प्रार्थना करें। And your prayer can do many things, as the Bible और says. जैसा बाइबल कहती है आपकी प्रार्थना इस देश में बहुत सारे बदलाव ला सकती है। Only we can do that. God has given that authority of prayer. He has given the authority to pray to God. That केवल हम ही ये कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करने का अधिकार हमको परमेश्वर ने दिया है। so people,
सो लोगों, whatever I have teach you, जो भी मैंने आपको सिखाया है, please go home जाओ घर and पे मेहरबानी recollect करके everything, याद करो जो कुछ आपने यहाँ सीखा है, so that the future of your children, the future of our nation will be further. सो आपके और आपके बच्चों का भविष्य आगे बहुत आगे बढ़ेगा। Amen, church? आमीन कलीसिया। Come on, let's pray with me. I'll say the prayer. You please tell behind और me. आप पास्टर कविता के साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं, इनके पीछे ये प्रार्थना आपको करना है। Please close your eyes. कृपया अपनी आंखें बंद करें। Lord, we thank you for our nation, India. मेरे साथ कहे, प्रभु हमारे भारत देश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We pray for righteousness, peace and unity. हम प्रार्थना करते हैं शांति, एकता और धार्मिकता के लिए। Make us responsible citizen इस देश के जिम्मेदार नागरिक हमें बनाओ and a faithful believer. और विश्वास योग्य विश्वासी बनाओ। May India be blessed भारत देश को आशीषित कर and guided by your wisdom. और तेरी बुद्धि से इस देश को चला। We commit our nation हम हमारे राष्ट्र को into your hand. आपके हाथों में देते हैं। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you, church.